Hello students, once again welcome to Sec Domination. This is lecture 3rd of biology chapter life processes. In this video we are going to talk about the types of heterotrophic nutrition as well as the nutrition process in amoeba and paramecium. Let us start. The very first we have to define what is heterotrophic nutrition. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है. देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते हैं. If we want to define it, heterotrophic nutrition is a mode of nutrition where the organism is unable to prepare its food and hence depends upon plants or other organisms for nutrition. किस पे डिपेंड करेगा? Basically they depends on autotrophs. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. वी वांट टू टॉक अबाउट इट्स एग्जांपल. देयर यू कैन सी these are the some examples like as mushrooms, pitcher plant, there are some animals. These all are completely dependent on others. That's why they are considered as a heterotrophic nutrient. Now we will talk about its types of heterotrophic nutrition. There are basically 4 types of heterotrophic nutrition which we can study, like as the very first one is saprophytic, second one is parasitic, third one is symbiotic and the fourth one is holozoic nutrition. अब हम लोग इनको एक एक करके डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. The very first one, saprophytic nutrition. Let us define it. In this mode of nutrition, organisms derive their nutrients from dead and decaying organic matter. जो भी जितना भी न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म किसी भी डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करेगा वही कहलाएगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. डेड और डिके भूलना नहीं, डेड और डिके दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डेड और डिके. If you want to talk about its example, the very first one, fungi like bread molds, yeast, mushrooms, they all can be considered its examples. I hope it is clear to you. Saprophytics, the organisms which are dependent on dead and decay. Now we are going to talk about parasitic nutrition. The parasitic nutrition means जिसके अंदर host पे depend करना, completely organism host पे depend करते हैं. In this mode of nutrition, organism obtain food from other living organism. Basically, the host by living or inside their body without killing them. Don't forget that I am repeating the statement, without killing them. मारेंगे नहीं उनको ये. If you want to take its example, then we can take an example of loss on human head, cuscuta plant, tapeworm. These all can be considered as its example. Now the third one, that is symbiotic nutrition. Symbiotic बहुत अच्छा है ये. अगर हम लोग इसकी बात करें, when two organisms are mutually benefited, जब भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए कोरिलेट करके अलाइव करें, एक दूसरे की इच्छाओं के लिए अलाइव करें, म्यूचुअली दे बेनिफिट, एक दूसरे की पूर्णतः मदद करें, वही कहलाता है सिम्बियोटिक. If we want to define, when two organisms are mutually benefited by living in close association with each other, they are called symbiotes, and this mode of nutrition is called as a symbiotic nutrition. If you want to take its example, then we can take the example of lichen. It is a symbiotic association of photosynthesis of algae or cyanobacteria, and we can also take an example of fungi. This one here you can see clearly, that is lichen. Don't forget there is a simple example which we can see commonly, जो हम लोग चारों तरफ अपने आस पास बड़े आसानी से देख सकते हैं. कौन सा है वो? कैटल एंड ईग्रेट्स का. कैटल ईग्रेट्स हम लोग हर जगह देख सकते हैं कि जानवरों के ये छोटे छोटे से मट्स पड़ जाना, इनको ईग्रेट इन पे डिपेंड करना, वो उससे सुकून पाने के लिए, थोड़ा शांति के लिए ईग्रेट पे डिपेंड करते हैं कैटल्स. तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. लेट अस डिस्क्राइब द अनदर वन, दैट इज होलोजोइक. बहुत बड़ा है, इसके अलग अलग नाम भी बोले जाते हैं. Firstly, we should define it. It is a process involves the steps of ingestion, digestion, absorption, assimilation, and last one that is excretion. इसका एक बहुत प्यारा नाम है जिसको ज़्यादातर उस नाम से पूछा जाता है. एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था, that it is also known as animal-like nutrition. For example, we can see this process in amoeba, paramecium, human beings, etc., where we can see this process clearly. Now the questions comes, what is ingestion, digestion, absorption? This is a
कंप्लीट प्रोसेस, एक लाइन से बिल्कुल प्रोसेस। द वेरी फर्स्ट वन इज इंजेशन। अगर हम लोग इसका मतलब बोले तो क्या बोलेंगे, टेकिंग इन, फूड का अंदर लेना, टेकिंग इन फूड, खाने का अंदर लेना। जब इंजेशन नेक्स्ट प्रोसेस में आता है, दैट प्रोसेस नोन एज डाइजेशन। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सॉल्यूबल सब्सटेंस। किस में बदलना, उसका इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस में बदलना। अगर हम लोग थर्ड की बात करें, देन व्हाट इज, दैट इज एब्जॉर्प्शन, उसी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, उसके लिए वेल डेवलप्ड ऑर्गन की सहायता से। तो क्या बोलेंगे, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज थर्ड। अब डाइजेस्ट फूड तो हो गया, देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट फूड इनटू एनर्जी, दैट इज फोर्थ प्रोसेस, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन व्हाट इज मीन, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द फूड बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा जो भी फूड मिला है उसे यूज करना। लास्ट वन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इजेशन, उसे हम लोग बोलते हैं इजेशन। इसे हम लोग अगर बोले तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इस फूड को बाहर निकालना। तो ये जो प्रोसेस है मैं एक बार फिर बताता हूँ, इंजेशन लेना, इनटेक ऑफ फूड, सेकंड डाइजेशन, उसे पचाना, थर्ड वन दैट इज अब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करना, अब उसका करना क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट, दैट इज एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकालना, दैट प्रोसेस नोन एज इजेशन। अब हम लोग इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन को एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन अमीबा से देखते हैं। अगर हम लोग बात करें अमीबा के अंदर, तो मेन देखो अमीबा आपको पता है, इट्स एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, it is a unicellular organism and thus there are no specific organ to perform different functions. different functions समझ में आए, 5 फंक्शन, इंजेशन, डाइजेशन, इन सब के लिए we need perfect organs, organs की जरूरत है। इसके पास वो organs नहीं है, but still ये फिर भी ये प्रोसेस करता है। इट डज नॉट पॉजेट डेफिनेट शेप, इसकी एक डेफिनेट शेप नहीं है। आप डायग्राम भी बनाते तो आपने देखा होगा, बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं होता, इट कंसिस्ट जस्ट ओनली न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। Now we will discuss the whole process in amoeba. Very first one, अगर हम लोग बात करें सबसे पहली प्रोसेस इंजेशन, इंजेशन की बात करें, इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा occur by temporary finger by the extension of cell surface called pseudopodia. स्यूडोपोडिया एक फिगर लाइक स्ट्रक्चर, जिस प्रकार मुंह प्रकार से आकार से स्ट्रक्चर होना, जो कि वहां से फूड का इनटेक करेगा, विच फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल्स, जो पूरी चारों तरफ से इसको क्या करेगा, कवर कर लेगा और फूड वैक्यूल्स बना लेगा। फूड वैक्यूल्स में क्या होगा, डाइजेशन। अच्छा पहली चीज दोबारा बोल रहा हूँ, स्यूडोपोडिया से ही फूड की एंट्री होगी। ये फॉर्म करता है, बेसिकली होता नहीं लेकिन उसको बना लेता है जैसे ही वो खाने के पार्टिकल को देखेगा। सेकेंड वन इज प्रोसेस इज इजेशन, डाइजेशन। सेकेंड वन डाइजेशन की बात करें, इनसाइड द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हमने टेक किया था आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस, छोटे 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 पीसेस में टूट जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर है, इंट्रा ऑर्गेनल नहीं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। देख सकते हैं आप लोग फूड वैक्यूल्स के अंदर इसकी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर हम लोग थर्ड की बात करें, देन थर्ड इज अब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में चारों तरफ इसको फैला दिया जाता है। अब उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑफ कोर्स एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इट यूटिलाइज टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ अमीबा। अब उसको एसिमिलेट किया जाएगा जिससे कि एनर्जी प्राप्त की जा सके। अगर हम लोग लास्ट प्रोसेस की बात करें, दैट प्रोसेस इज इजेशन, लास्ट प्रोसेस इजेशन है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ मटेरियल इज मूव्ड आउट द सरफेस एंड थ्रू आउट द सेल, सेल से होते होते धीरे धीरे वो प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर हम लोग कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, वेरी फर्स्ट वन फूड का इंटेक स्यूडोपोडिया से, डाइजेशन फूड वैक्यूल्स में, एब्जॉर्प्शन पूरे साइटोप्लाज्म में, फिर उसको एसिमिलेट करना और लास्ट इजेशन, उसको बाहर निकाल देना। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस इन अमीबा। लास्ट सेकेंड ऑर्गेनिज्म की बात करें, दैट इज पैरामीशियम। अगर हम लोग पैरामीशियम की बात करें, आप लोग देख सकते हैं पैरामीशियम के पास आपको लग रहा है इसके नेम्स लिखे हुए हैं, ऑफ कोर्स इसके वेल डिफाइंड ऑर्गन्स हैं, इसके पास एक अच्छा शरीर है। पैरामीशियम एज अ डिफाइंड शेप, एक फिक्स शेप है। इट कंसिस्ट बकल कैविटी, इसके पास बकल कैविटी भी होती है। अगर हम लोग इसके अंदर इंजेक्शन प्रोसेस की बात करें तो किस प्रकार से, इन इट द फूड इज इंजेस्टेड बाय डेफिनेट शेल माउथ, और जिसका नाम भी है एक साइटोस्टोम, लाइंग एट द बॉटम ऑफ बकल कैविटी। जस्ट बकल कैविटी की थोड़ा सा नीचे इसमें क्या पाया जाएगा, एक साइटोस्टोम पाया जाएगा जहां से ये इनटेक
करता है फूड को इनटेक। अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया से था जो कि उसने फॉर्म किया था, डेफिनेट नहीं था, उसने फॉर्म किया साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके पास एक डेफिनेट है। और हम इसके अंदर सेकंड प्रोसेस देखें फिर उसके बाद में क्या होता है, द फूड इज मूव्ड इन द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो इसके हेयरी स्ट्रक्चर जो बाल बाल साइड से निकलते हैं उसकी सहायता से ये चारों तरफ एंटायर सरफेस में क्या कर जाता है, फैल जाता है। क्या, खाना जो फूड इनटेक किया था वो चारों तरफ फैल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स के अंदर देन डाइजेस्ट करना होगा उसे, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड फ्रॉम द साइटोजन, फिर उसे बाहर छोड़ दिया जाएगा, दैट इज एनुअल स्पॉट की सहायता से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अमीबा यूनिसेलुलर बट अनडिफाइंड ऑर्गन, पैरामीशियम वेल डिफाइंड इसके ऑर्गन्स थे, इसके अंदर फिक्स पोजीशन थी जिसकी सहायता से इसने पूरी अपनी इंजेक्शन प्रोसेस लास्ट तक की, पूरी न्यूट्रिशन प्रोसेस इसने लास्ट तक की। आई होप all doubts regarding to this topic is clear to you. If you have any doubt then you can directly contact me. Thank you very much guys.